We will have, to begin with, some breaking news coming in at this point in time from the state of Uttar Pradesh. UP Chief Minister Yogi Adityanath has called for use of cow dung paint for government buildings. In a review meeting of the Animal Husbandry Department that took place yesterday, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, called for the use of cow dung-based natural paint on government buildings and also pushed for greater use of technology and innovation to strengthen the dairy sector. This decision has sparked a political firestorm in Uttar Pradesh, with the Samajwadi Party firing barbs and heaping insults. Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party leading the charge, calling BJP against the BJP by calling it Gobarnama stunt of the Bharatiya Janata Party. Let me straight away go across to my colleague Adib, who is joining us live for more on this big story. Adib, firstly, before we jump into the politics that has started over it, I want to understand from you, what is the rationale behind this decision that has been taken by the UP government for government buildings? Well, Hinasi, first of all, Chief Minister Yogi Adityanath, he was conducting the review meeting of the Animal Husbandry Department. In that particular meeting, in order to restore the Animal Husbandry Departments and to restore the animal shelters, especially the cow shelters, Chief Minister Yogi Adityanath gave a direction that the cow dung-based natural paints should be used in the government building as to promote the usage of the cow shelters, and the officials of every particular district should promote the cow shelters in their districts. And apart from this, he gave multiple directives for the Animal Husbandry Department relating to the cow shelters. Now the Samajwadi Party has taken to the social media post, their social media account. In fact, Akhilesh Yadav has called it as a new stunt by the BJP government. And in fact, the other leaders from Samajwadi Party, they are continuously attacking the Chief Minister Yogi Adityanath and the BJP, calling out, they are saying that it is up to the Chief Minister that he can do whatever he wants, as the people of the Uttar Pradesh has given him mandate for the second time. But if he really wants to promote the usage of cow dung, then he should replace all the tiles in the Chief Minister's office in Lok Bhavan also, and he should replace it with the cow dung. So this is how the Samajwadi Party is now attacking the BJP and the Chief Minister Yogi Adityanath for the directives that he has given for the welfare of the Animal Husbandry Department and the cow shelters. Right. Adib, request you to stay on with us. My colleague Sagrika is also joining us live. Sagrika, I'll come to you in just a bit. Meanwhile, I'm joined by IP Singh of the Samajwadi Party as well. Mr. IP Singh, good afternoon. Thank you for speaking with us here on Times Now. आप किस तरह से देखते हैं ये जो फैसला लिया गया है यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से that cow dung will be used, for painting the government buildings? देखिए, पूरी बीजेपी के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, मुख्यमंत्री जी के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो बेरोजगारी पर रत्ती भर बात नहीं करते। देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर पूरी तरह वो शांत रहते हैं। अब कुल मिलाकर कितनी गायें उत्तर प्रदेश में है, कितनी भैंसे हैं, कितना गोबर उत्पादन हो रहा है, उससे कितना, अब क्या कोई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाया उन्होंने कि जो गोबर से और बिल्ली के गूल से ये सब बन रहा हो? ये मजाक बनाकर इन लोगों ने रख दिया पूरे देश का। हमारा पड़ोसी देश देखिए, चीन कहां से कहां पहुंच गया। लाखों किलोमीटर उनकी बुलेट ट्रेनें चल रही हैं। 2014 में बुलेट ट्रेन लेकर आ रहे थे, 2025 जा रहा है। आप बड़े काम करते नहीं। उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो गए पूरी तरह से जी। उत्तर प्रदेश में त्राही मची है, बिजली 24 घंटे मिलती नहीं है, अराजकता का माहौल है, बहन बेटियों की इज्जत उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, बहनें निकल नहीं पाती, आए दिन हत्याएं, लूट। जी, IP सिंह जी, आपकी बात हमने सुन ली है। पॉलिटिक्स असाइड, एक वर्ग का ये भी कहना है कि अगर काऊ डंग मिले पेंट की हम बात करें तो वो इको फ्रेंडली होता है, वो सस्टेनेबल होता है और वो इंडियन प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस का जो है हिस्सा रहा है कई वर्षों से। आप क्या कहेंगे? ये रोजगार चाहिए। अगर योगी जी को इतना है तो अपने मठ की पुताई करा ले। जिस कमरे में सोते हैं, जो करोड़ों रुपए की लागत का भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, उसको गोबर लीप ले, उसकी पुताई कर ले, लेकिन लोगों को रोजगार दे। मठ की पूरी पुताई गोबर से करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए,
और सबसे बड़ी बात कि हमारे लोग मारे गए, 13 ही बीत गई, ये बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। जी। ये जो रफेल था, रफेल, वो अलग मुद्दा है, उस पर भी आपसे आपकी टिप्पणी लेंगे, बट फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी। सुनील यादव ऑफ द समाजवादी पार्टी इज आल्सो नाउ जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस हियर ऑन टाइम्स नाउ। योर फर्स्ट रिएक्शन, जो ये डिसीजन आया है यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मैं ये कह सकता हूँ, देखिए गोबर से कोई आपत्ति किसी को नहीं है। अगर गाय की गोबर का वो पेंट बना करके और अभी सरकारी आपने सुना दफ्तरों में आप ही के पार्टी के नेता आईपी सिंह, उनको तो काफी ज्यादा आपत्ति है। अखिलेश यादव इसे गोबरनामा स्टंट कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जिन लोगों ने सपने बड़े बड़े दिखाए थे, वो लोग पूरे प्रदेश को और देश को गोबर पे लाके समेट देना चाहते हैं। ये बात आपके कार्यक्रम के माध्यम से अगर प्रदेश को और देश के नौजवानों को समझ में आ जाएगी तो उसमें क्या आपत्ति है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आवास पहले गोबर से पुतवा लें, अपनी गाड़ी पुतवा लें और अपना ऑफिस पुतवा लें, और उसके बाद भी अगर उनको और ज्यादा प्रेम हो तो खुद भी पोत करके घूमें। गाय का गोबर पोतना कोई खराब बात नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वस्त्रों में गाय का गोबर पोत के घूमेंगे तो वो और सुंदर भी दिखेंगे, तो कोई आपत्ति नहीं। सुनील यादव जी, भारत की बात करें तो ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस हमारी चली आ रही हैं सेंचुरी से, कई सालों से, जहां पर ये एंशियंट टेक्निक को काफी ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। इको फ्रेंडली कोटिंग मानते हैं इसको, सस्टेनेबल मानते हैं। तो आपकी दिक्कत दरअसल किस बात से है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ से सरकार का जो कहना है, उनका ये कहना है कि इस मूव से, इस डिसीजन से जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसको भी मदद मिलेगी, और ओवरऑल जो है एक तरह से एक नया इनोवेशन भी हम इसमें करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का पेंट जो है वो इस्तेमाल होता है, कई सालों से भारत में यूज हो रहा है। आप रिमोट एरियाज में जाकर देखिए, डेकोरेशन के साथ में गुजरात के कई इलाके हों, कई जगह पर इस तरह का इस्तेमाल होता है। सो आई वांट टू आस्क यू, आपका मेन प्रॉब्लम क्या है इस पूरे मामले में? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम लोग जिन गांव से आए हैं, जिन गांव के रहने वाले हैं, जहां रहते हैं, अभी भी गोबर से पुताई होती है। जब पक्के घर नहीं थे तो कच्ची दीवारों में गोबर की लिपाई होती थी, दरवाजे पर होती थी। वो ठीक आप कह रही हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन गाय के गोबर का इतना महत्व सरकार बताने वाली गाय पर ध्यान नहीं दे रही है। गौशाला में गाय की क्या दुर्दशा इन लोगों ने बना दी भ्रष्टाचार को लेकर के, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। गाय का गोबर दिखाई दे रहा है, गाय का मूत्र दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि असल मुद्दे से भटकाने वाले ये लोग। All right, so you're calling it an attempt to divert the attention from the real issue. सुनील यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। Let me now go across to my colleague Sagrika as well, who I believe has got some more reactions coming in on this story. Sagrika, over to you. You've already spoken to IP Singh of the Samajwadi Party, but let me just take you through the kind of comments coming in from the top leadership of the Samajwadi Party here. Akhilesh Yadav goes on to say, Gobarnama Bhajapa Sarkar ka naya karnama. Then you have IP Singh who just spoke to you. He says, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसलिए गोबर से उतर नहीं पाती ये भाजपा सरकार. But what are the facts? You know, it's like you said, it is not a new thing. So the kind of barbs that are flying thick and fast, if we just talk about khadi, you know, the gobar, naturally used paint, which is, you know, used making cow dung, is known as Prakritik paint, which was also tested and also backed by the government after multiple researches and also scientific backing and validation. So this paint is also known as Prakritik paint, which is eco-friendly cow dung paint, which was manufactured. Sagrika, I'm just interrupting you there. There's some problem with the audio. We'll come back to Sagrika and get you those reactions that she was talking about. Meanwhile, we are joined by Shehzad Poonawalla of the Bharatiya Janata Party. Good afternoon, Shehzad. Thank you for speaking with us here on Times Now. The decision by UP Chief Minister Yogi Adityanath for using cow dung paint on government buildings is being called as a Gobarnama stunt of the BJP by Samajwadi Party. Your response? Shehzad, can you hear me? Yes, I can hear you.
So this move, this decision by UP Chief Minister Yogi Adityanath for using cow dung paint for government buildings is being slammed by the Samajwadi Party, with Akhilesh Yadav calling it Gobarnama stunt of the BJP. Other Samajwadi Party netas saying that this is just an attempt to divert the attention. How will you like to respond? You know, Akhilesh Yadav and his party prides itself of being a Gopalak party. And here, when a step is being taken to increase the income of anybody who's associated with cow rearing, which is by use of gomoot or by use of the cow dung or by use of other things that are coming out from cow, then instead of celebrating it and instead of welcoming it, this is the same party which says गौशाला से बदबू आती है. इनको सुअरशाला से ठीक खुशबू आती है, पर गौशाला से बदबू आती है. इनको काउडंग से मखौल उड़ाना है. This is the kind of mindset, you know, in the name of vote bank politics. He sees Mathadish as mafia, he sees Mahakumbh as Mrityukumbh, and even something which is being done to actually benefit the farmers. Every farmer has a cow. The cow dung is utilized by the government or the other machinery. It will give income to the farmers. So this is a farmer virodhi, entitled dynast, and therefore he is not even living up to the party's nature of being a Gopalak party. They don't have any, love or affection for either cow or for the farmers who are rearing cows. All right, Shehzad Poonawalla, appreciate you joining us here on Times Now and sharing with us your perspective. We have Ravindra Jaiswal, UP Minister, joining us on the phone line as well. Mr. Ravindra Jaiswal, good afternoon. Thank you for speaking with us here on Times Now. Firstly, I want to ask you, what is the rationale behind this decision by UP Chief Minister to use cow dung in paints for government buildings? हमारे सनातन परंपरा में हम गौरी गणेश का पूजा करते हैं. हमारी आस्था गाय में है, हमारी आस्था गाय का गौ माता में है, हमारी आस्था गाय से संबंधित हर चीज में है. अगर उसमें गोबर भी है तो हमारे हिंदू परंपरा में गौरी गणेश का पूजा करते हैं, गोबर का बना करके उसका पूजा करके तब आगे काम करते हैं. और हमारी आस्था उस गोबर के साथ साथ, पूजा के साथ साथ एक नेचुरल जो केमिकल से युक्त हटा करके एक नेचुरल हमारा पेंट बनने की बात हो रही है. एक नवाचार है, और नवाचार होने से हमारे पास जो गांव में तमाम ऐसे गोबर हैं, हम उनका यूज करेंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि हम इसका सदुपयोग करते हुए और केमिकल से हटा करके हमारा जो नेचुरल कलर है वह बनेगा गोबर से जी. लेकिन और ये आस्था से जो सपा वाले हमला कर रहे हैं, सपा के लोग जी, ये सब भैंस वाले हैं, ये गाय वाले नहीं हैं. लेकिन रविंद्र जायसवाल जी, मैं पॉलिटिक्स पर ही आ रही हूं. अभी हमने बातचीत भी की कई समाजवादी पार्टी के नेता से, और साथ ही अखिलेश यादव का भी जो रिएक्शन आया है, उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की तरफ से एक गोबरनामा स्टंट है. और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं. वहीं एक और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि अब काउ डंग यूज करते हैं टाइल्स की जगह. पूरे शहर को, पूरे स्टेट को इनफैक्ट काउ डंग से जो है लगा देना चाहिए, उसके ऊपर काउ डंग. आप किस तरह से जवाब देंगे इस तरह की जो टिप्पणियां आई हैं? एक तो अखिलेश यादव को वह गाय के विरोधी हैं, उनकी दोस्ती यारी और संरक्षण वो देते हैं. जो गाय काटने वाली क्या नाम से स्लाटर हाउस है, तो स्लाटर हाउस के पक्ष में अखिलेश यादव जी खड़े रहते हैं जहां गौ माता कटती है. इनके शासनकाल में सबसे अधिक लाइसेंस दिया गया था स्लाटर हाउस का. यह गौ माता के कसाई हैं. दूसरा है कि माननीय योगी जी गौ पालक हैं. आज लाखों गौओं का संरक्षण किया गया है और सारे स्लाटर हाउस बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके लाइसेंस दे रखे थे अखिलेश यादव जी ने. एक तो इनका विरोध का, इनका रिएक्शन कारण यह है कि स्लाटर हाउस जो इनके नेतृत्व में चल रहा था वो बंद हो रहा है. और माननीय योगी जी ने इसे गाय माता की रक्षा कर रहे हैं और गाय पालने वालों का भी सरकार अनुदान दे रही है. सरकार अनुदान के साथ साथ उनके गोबर का भी इस्तेमाल करने जा रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छा ले जाएगा. जी, ऑल राइट. रविंद्र जायसवाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दैट वाज द यूपी मिनिस्टर गिविंग अस द रैशनल बिहाइंड दिस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट एंड अ रिस्पॉन्स ऑफ द बीजेपी टू द अटैक्स कमिंग इन फ्रॉम द समाजवादी पार्टी.